Good morning, dear students. Today we are here with our English topic, that is chapter 8, Rich for the Top, part 4. Yes, we have seen many parts of this chapter. We have learned about the most important or world famous or youth's icon or youth's model, right? That is the two women's. One is Santosh Yadav and other is Maria Sharapova, right? So we can say these two ladies are the role model for the youths, okay? Because at very young age they have started their career, or we can say that they had worked hard, really worked hard for their career, right? And whatever they targeted, whatever they have decided, whatever they want to do in life or in future, they worked for it and they became successful, right? So this both famous women's, one was Santosh Yadav, a great mountaineer, right, a world famous women who twicely climbed Mount Everest, only women we can say, and the youngest women who climb Mount Everest. And the next one is the Maria Sharapova, about whom we are studying. She is a great tennis player. Right, at a very young age, she had started her career in tennis as a sports. So, lastly, we have discussed that she got singles crown in 2004 Wimbledon, and then in 2005 she became the she ranked as a number one world player, right? Another thing that lastly where we have stopped, that was she was recalling her childhood कि कैसे 9 साल की एज में उसके फादर ने उसे अमेरिका ले गए फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टेनिस. वहाँ वो उसी जगह पे रही अकेली विदाउट हर मदर. सो हाउ मच शी वॉज मिसिंग हर मदर, how much she was feeling lonely, okay? And as his father, sorry, as her father was quite busy, so that busy in earning we can say, or working very hard so that she can able to continue with her tennis training, right? So this was the story up till we have read. So now we'll continue with the next. So let's move on. Reach for the top. Because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m. अब वो बड़ी हो चुकी है. लास्ट पार्ट में हमने देखा कि अब वो बड़ी हो चुकी है. 2005 में उसे विंबलडन सिंगल्स क्राउन भी मिल गया है. बट वो बात कर रही है और वो अपने अपने इस जर्नी की शुरुआत बता रही है कि कैसे वो अमेरिका आई एट द एज ऑफ 9, राइट? कैसे उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई टेनिस की, वो जहाँ रहती थी वहां का माहौल कैसा था. शी वॉज शेयरिंग ऑल सच थिंग्स, ओके? सो अब वो क्या कह रही है कि बिकॉज आई वॉज सो यंग, बोले मैं बहुत छोटी थी, राइट? काफी छोटी होने की वजह से मैं आई यूज टू गो टू बेड एट 8 p.m. बोले मैं 8 बजे तो मैं सोने चली जाती थी. द अदर टेनिस pupils would come in at 11 p.m. and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. मतलब उसके साथ उसके जो कलीग थे, या वी कैन से द रूममेट्स, ओके, उसके साथ उसके जो रूममेट्स थे वो उसे बहुत परेशान करते थे. वो सबसे छोटी थी तो वो 8 बजे सो जाती थी. अब उसके जो दूसरे टेनिस प्यूपल्स थे, उसके जो दूसरे को रूममेट थे, वो क्या करते थे, वो 11 बजे रात के आते थे और उसे उठाते थे. शी दे यूज टू वेक हर अप, राइट? और उसे ऑर्डर करते थे कि वो पूरा रूम साफ करे, उस रूम को टाइडी यानी सारी चीजें अच्छे से रखे, और उससे वो पूरा रूम साफ करवाते थे जबकि वो सोई हुई होती है. वो 8 बजे सो जाती थी, 11 बजे ये लोग उसे परेशान करते थे, उठाते थे. Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. So वो जो चीजें थी, which was somewhere she was unsatisfied, we can say, जिससे वो कहीं ना कहीं नाखुश थी, वो सारी चीजें उसे डिप्रेस नहीं किया, राइट? अगर कोई होता तो छोड़ देता, भाई मैं यहाँ नहीं रह सकती इस तरीके से, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू गो बैक. बट इंस्टेड वो डिप्रेस्ड नहीं हुई, और डिप्रेस्ड होने के
बदले उसने उसे एज अ स्ट्रेंथ की तरह यूज किया, वो और भी ज्यादा डिटरमाइंड हो गई, राइट, और भी ज्यादा मेंटली टफ हो गई कि कोई भी सिचुएशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ रहना है, मुझे यहाँ टिके रहना है और मुझे टेनिस सीखना है। सो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और धीरे धीरे वो ये भी सीख गई कि खुद का ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि जब वो वहां पे गई तब वो काफी छोटी थी, जब वो अकेली रही, शी वॉज ओनली 9, और शायद उसे तब तक ये भी नहीं पता था, शायद उसकी मदर सब कुछ करती थी, एंड दैट्स वाई वो अपनी मदर को बहुत मिस करती थी और वो लोनली फील करती थी। बट स्लोली एंड स्टेडली वो सीख गई कि अब खुद का ख्याल कैसे रखना है। I never thought of quitting, but I knew what I wanted. कभी भी उसने टेनिस को छोड़ने का ये ख्याल उसे कभी भी नहीं आया कि मैं क्विट कर दूं, अब मुझसे नहीं होगा यहाँ पे। बट इंस्टेड उसे पता था कि उसे क्या चाहिए और कैसे उस चीज को हासिल करनी है, कैसे वहां तक पहुंचना है। शी वॉज सो मच डिटरमाइंड। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. सी हमेशा हर एक चीज की भूख जो होती है ना, वो आपको सक्सेस तक ले जाती है। वो क्या कह रही है, मारिया इज टेलिंग कि व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग, तुम जहां से आए हो तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है, वहां तुम्हें कोई जानता ही नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। एंड यू हैव नथिंग, और तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है, बट तुम्हें बहुत कुछ चाहिए, राइट एक भूखे को पता होता है कि खाने की कीमत क्या होती है। A beggar knows very well what is the importance of food. In the same manner, जिसने कभी सक्सेस देखा ना हो, या जो एक ड्रीम लेके आया, उसके पास सिर्फ एक ड्रीम है, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो जो हंग्री है, वो जो हंगरनेस है, वो और भी बढ़ जाती है। वो हंगरनेस किस चीज की होती है? वो भूख होती है सक्सेस की, वो भूख होती है अपने ड्रीम को अचीव करने की। तो वो चीज उसे और भी डिटरमाइंड करने लगी, और भी टारगेटेड करने लगी। वो अपने एम्स पे, उसका जो मकसद है, उसका जो ड्रीम है, उस पे वो डटी रही और डिटरमाइंड थी कि वो वहां से नहीं हिलेगी जब तक उस ड्रीम को अचीव ना कर ले। I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. वो जहां रहती थी, जिस तरीके से जो कुछ भी उसके साथ हुआ, वो उसे बहुत ह्यूमिलिएशन, उसने बहुत ही ह्यूमिलिएशन देखा, इंसल्ट देखा। ह्यूमिलिएशन यानी उसे बहुत तंग किया जाता था, उसे बहुत परेशान किया जाता था, उसका इंसल्ट किया जाता था, राइट। और बहुत कुछ ऐसा, फिर भी देन दैट टू steadfastly pursue my dream, फिर भी अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए वो हमेशा रेडी रही। वो चीज उसे उसका कॉन्फिडेंस लो नहीं कर रही थी, उल्टा वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती जा रही थी। वो उस चीज से डिप्रेस्ड नहीं हो रही थी, उसे वो अपनी स्ट्रेंथ बना रही थी टेनिस में। That toughness runs through Maria even today. आज मारिया बड़ी हो गई है, आज भी वो टफनेस उसके अंदर दौड़ रही है, आज भी वो उतनी ही टफ है। It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004, and to her meteoric rise to the world number one sport the following year. वो टफनेस की वजह से ही जो आज भी उसमें है, वही उसकी एक चाबी बनी सक्सेस की, जिसकी वजह से वो वुमेन सिंगल क्राउन विंबलडन में 2004 में वो जीत पाई। वो उसकी एक पहचान बन गई, राइट। वो टफनेस की वजह से, उस टफनेस को उसने एज अ की ऑफ सक्सेस यूज किया, राइट। और उसकी स्ट्रेंथ की वजह से वो वुमेन सिंगल्स का क्राउन जीत पाए विंबलडन 2018 में, सॉरी 2004 में। And to her meteoric rise to the world number one sport the following year. और उसके बाद उसका जो एक सक्सेस का चार्ट था, वो ऊपर ही ऊपर जा रहा था। उसके बाद कभी उसने पीछे देखा ही नहीं। वो इतनी राइज हुई, इतनी मेटोरिक उसकी राइज हुआ, इतनी वो आगे बढ़ी कि वो वर्ल्ड में नंबर वन जानी गई आफ्टर द फॉलोइंग ईयर्स यानी 2004 के बाद वो और ज्यादा फेमस होती गई लोगों में। While her journey from the frozen plains of Siberia
to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans. For the youngster herself, there appears to be no room for sentiment. उसकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? एक फ्रोजन प्लेन्स से हुई, राइट? वो फ्रोजन प्लेन्स वो कौन सी जगह थी? सिबेरिया, जो जहाँ पे सिर्फ बर्फ है, ठीक है? फ्रोजन प्लेन्स मतलब और कुछ था ही नहीं सिबेरिया में। ऐसी एक जगह से उसकी जो जर्नी शुरू हुई, वहां से उसकी उसकी वो कहाँ तक पहुंची? वो एक टॉप तक पहुंची। समिट को हम कह सकते हैं कि किसी माउंटेन का कोई टॉप होता है, दैट इज वी कॉल्ड समिट। वो उस समिट तक पहुंची। कौन सा समिट तक? वुमेन्स टेनिस तक। वो उतनी आगे निकली, राइट, कि टेनिस फैंस उसके उसके फैंस के वो हार्ट में बसती थी। इतने उसके फैंस हो गए बिकॉज ऑफ हर स्ट्रगल, हर हार्ड वर्क। For the youngster herself, there appears to be no room for sentiments. Youngster के मन में भी, जितने भी youngsters यूथ थे, राइट, कहीं ना कहीं मारिया शरापोवा को लेकर कोई सेंटिमेंट्स नहीं था। ऐसी कोई जगह ही नहीं थी कि उसे लेकर कोई सेंटिमेंट हो। शी वॉज सो मच स्ट्रॉन्ग एंड शी वॉज सो मच स्ट्रेंथफुल, राइट, कि कोई उसे उस पर सिंपथी कर जाए, ऐसी वो थी ही नहीं। शी वॉज दैट मच स्ट्रॉन्ग कि सेंटिमेंट्स की कोई जगह ही नहीं थी। The straight looks and the answer she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifice were worth it. वो हमेशा सीधा बोलती थी। उसका लुक्स, उसके आंसर्स हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे, राइट। वो घुमा फिरा के या वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी, राइट, कि वो कवर अप करके या फिल्टर करके कोई चीज को बोले। शी वॉज कंप्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके लुक्स भी ऐसे थे, उसके आंसर्स भी जो भी देती थी वो भी ऐसे थे, और यहाँ तक वो ये भी कहती थी कि अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए वो क्लियर थी। फर्स्ट थिंग, शी वॉज क्लियर टू अचीव हर एम्बिशंस। नेक्स्ट शी सेज कि जो कुछ भी उस एम्बिशंस को पूरा करने के लिए मुझे जितना भी सेक्रीफाइस करना पड़ा, वो वर्थ था, क्योंकि आज वो यहां तक पहुंच पाई। उस सेक्रीफाइसेस की वजह से, उस हार्डवर्क की वजह से, उस स्ट्रेंथ की वजह से शी कैन एबल टू रीच द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस, राइट। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, इट्स माई जॉब, दैट इज हर मंत्र फॉर सक्सेस। मारिया का क्या मंत्र था सक्सेस का? एक, कि वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। वो हर एक कंपटीशन में, हर एक चीज में उसे पता है कि कंपटीशन हमेशा तगड़ा होगा, राइट। ये जर्नी या अब की जो जनरेशन है, इट इज कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव। यू हैव टू बी बेस्ट देन अदर। आपको हर सेकंड में बेस्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि आपसे ज्यादा एक पॉइंट आगे कोई ना कोई आएगा, उससे वापस और बेस्ट कैसे होना वो आना चाहिए। सो वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव थी, राइट। वो हमेशा हार्ड वर्क करती रहती थी। वो ये नहीं सोचती थी कि अब तो मैं फेमस हो गई, अब तो मैं जीत गई, अब तो मैं मास्टर हूँ टेनिस की, अब मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मैं तो जीत जाऊंगी। शी वॉज नेवर ओवर कॉन्फिडेंट। वो कॉम्पिटिटिव थी, वो हार्ड वर्क बाद में भी उसने वो कंटिन्यू किया। इट वॉज नॉट दैट कि नाउ आई एम अ मास्टर ऑफ टेनिस, नाउ आई डोंट वांट टू प्रैक्टिस, मैं ऐसे ही जीत जाऊंगी, नहीं, राइट। और वो उसका जॉब था। दिस वॉज हर सक्सेस मंत्र, ओके। Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality, no doubt, क्योंकि वो अमेरिका में उसने वो ट्रेनिंग ली टेनिस की, राइट। सो मारिया शरापोवा का जो स्पीच थी, जो लैंग्वेज थी, वो जो बोलती थी, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिकन असेंट आ जाता था। शी विथ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट, वो आ ही जाता है कि आप जिस जगह पे लॉन्ग टर्म रह रहे हो वहां की बोली ऑटोमेटिक आप में आ जाती है। सो वो क्योंकि अमेरिका में रह रही थी तो वो अमेरिकन एसेंट उसमें आ गया था, बट वो हमेशा प्राउड थी अपनी नेशनैलिटी को लेकर, दैट इज रशियन। शी वॉज ऑलवेज प्राउड ऑफ बींग रशियन। क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज आई एम रशियन। कोई भी डाउट्स के बिना उसने क्लियरली बोल दिया कि मैं एक रशियन हूं, क्योंकि वो सर्बिया से आई थी, है ना।
इट्स ट्रू दैट द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। बोले नो डाउट कि यूएस मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसकी वजह से, यहाँ यूएस में आने की वजह से, यहाँ से मेरी सक्सेस जर्नी शुरू हुई, यहाँ से मेरी टेनिस ट्रेनिंग शुरू हुई। नो डाउट यूएस प्लेज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, वो भी मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट है, बट माई नेशनैलिटी वुड ऑलवेज बी रशियन। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप। बोले मेरे पास एक ही सिटीजनशिप है, वो है रशियन। माई ब्लड इज टोटली रशियन। बोले मैं जहाँ पे बड़ी हुई हूँ, मैं जहाँ पे बॉर्न हुई हूँ, मेरे खून में ही वो है, मेरे खून में ही, मेरे ब्लड में ही रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशियन इफ दे वॉन्ट मी। अगर रशियंस चाहे तो मैं उनके लिए ओलंपिक्स भी खेलूंगी, उसमें भी पार्ट करूंगी एज एन रशियन प्लेयर। राइट, सो शी सेड कि मैं वहां पे भी पार्ट लेने के लिए रेडी हूँ इफ दे वांट। राइट, like any number of teenage sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing, and dancing as her hobby. Right? जितने भी सारे टीनेज्ड है, उनमें एक सेंसेशन होता है। राइट, उनमें और भी बहुत सारी काबिलियत होती है। वैसे ही मारिया शरापोवा में भी बहुत सारे सेंसेशंस थे। जैसे उसे फैशंस की समझ बहुत थी, जैसे हमने आगे पढ़ा कि शी वॉज समथिंग लाइक अ स्टारडम। उसकी क्लोथिंग सेंस, वो एक स्टाइल आइकॉन भी थी फॉर यूथ्स। सिंगिंग करना उसे पसंद था, डांसिंग पसंद था, ये सारी उसकी हॉबीज थी। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल। उसे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद था, और खास करके किसके नॉवेल्स पढ़ती थी वो? आर्थर कॉनन डॉयल। Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. अब उसे क्या क्या पसंद है? वो बहुत fond of थी sophisticated evening gowns. उसे evening gowns पहनना बहुत पसंद था, sophisticated colors जिसमें हो, right? और उसके साथ एक चीज और ऑड जाती थी, और वो थी कि उसे पैनकेक्स बहुत पसंद थे। शी लव्स पैनकेक्स। और कौन से पैनकेक्स? विथ चॉकलेट स्प्रेड, उस पर एक चॉकलेट स्प्रेड होना चाहिए। और ड्रिंक्स में उसे फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स पसंद था। सो वो कंप्लीटली एक टीनेज्ड गर्ल की तरह ही थी। राइट, ऐसा नहीं था कि सिर्फ टेनिस है तो टेनिस ही एवरीथिंग। टेनिस तो उसके लिए लाइफ थी ही, बट इसके अलावा वो इन सब में भी काफी आगे रही है। फैशन, सिंगिंग, डांसिंग, राइट, एवरीथिंग। ओके, सो वी कैन से शी इज अ मल्टी टैलेंटेड गर्ल। राइट, मारिया शरापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। हम मारिया शरापोवा को किसी के साथ कैटेगराइज्ड नहीं कर सकते, वो पिजन होल्ड नहीं थी। राइट, कि हर एक की जैसे ही वो करेगी। हर टैलेंट, unwavering desire to succeed, and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. जैसे मैंने कहा कि हम इसको किसी भी कैटेगरी में नहीं रख सकते मारिया शरापोवा को। शी कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड और पिजन होल्ड। ओके, ये एक प्रोवर्ब कह सकते हैं हम, पिजन होल्ड। हर टैलेंट, एक तो उसका टैलेंट, शी वॉज वेरी टैलेंटेड। दूसरा उसका जो डिजायर था सक्सेस के लिए, अनवेवरिंग, यानी बिल्कुल हिला डुला नहीं। शी वॉज कॉन्फिडेंट, उसे क्या चाहिए, उसे क्या, किस हिसाब से और कैसे सक्सेस चाहिए। शी वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट और ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस वॉट एवर। ये जो कुछ इसमें आई कैन से कि एक जो कैरेक्टर्स थे इसके, जो इसकी वजह से वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड में वो काफी ऊपर आई और टॉप ऑफ द वर्ल्ड बनी। Few would grudge her the riches she is now reaping. बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको एक ग्रज रह जाता है, एक कहते हैं ना कि एक अनवांटेड डिजायर कुछ पूरी ना हो, ऐसे कुछ ग्रजेस रह जाते हैं कि मैं ये नहीं कर पाई जिंदगी में, मैं वो नहीं कर पाई। राइट, हर द रिचेस शी इज नाउ रिपिंग, बट उससे ऐसा कोई ग्रज नहीं रहा है। वो इतनी हो चुकी है, इतनी फेमस, रीच यानी इतनी फेमस हो चुकी है। और जिस तरीके से वो राइपिंग, यानी जिस तरीके से और वो खुद को
आगे ले जा रही है सक्सेस की ओर, दैट इज अनकंडीशनल. This is what she has to say about her monetary gains from tennis. So वो यही कहना चाहती है टेनिस से उसे monetary gain कैसे हुआ. Monetary यानी money. Okay. वो जैसे उसने पहले ही बोल दिया कि स्पोर्ट्स इज अ बिजनेस एंड स्पोर्ट्स, राइट. सो वो मॉनेटरी गेन भी कर रही है और वो कहीं ना कहीं रिच भी हुई है उससे. ऑफ कोर्स मनी इज अ मोटिवेशन. वो ये भी कहती है कि हाँ मैं खेल रही हूँ, क्यों, मुझे मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन क्या मिल रहा है, मनी, राइट. एवरीबडी वॉन्ट्स मोटिवेशन, और यहाँ पे फॉर हर मनी इज अ मोटिवेशन, राइट, जिसकी वजह से वो बाकी के अपने ड्रीम्स भी पूरे कर सकती है, राइट. टेनिस इज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट. वो वापस यही कहती है कि टेनिस क्या है, टेनिस एक बिजनेस है और एक स्पोर्ट है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड. बिजनेस है या स्पोर्ट वट एवर, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वर्ल्ड में फेमस होना, वर्ल्ड में नंबर वन होके दिखाना टेनिस में. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हर. दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग. और वही उसका जो ड्रीम हमेशा रहा कि मुझे सिर्फ टेनिस खेलना नहीं है, मुझे नंबर वन बनना है वर्ल्ड में. और वही ड्रीम को वो अचीव करती रही और आगे बढ़ती रही, और वही ड्रीम उसे कहीं ना कहीं अवेक रख रहा है, कहीं ना कहीं उसे आगे बढ़ने की एक पुश कर रहा है. सो दिस वॉज मारिया शरापोवा. So finally we are ending the chapter here. We have learned about Santosh Yadav and Maria Sharapova, the great or famous personalities, right? जो बिंग विमेन, यस बिंग विमेन, और काफी कम एज से who have succeeded in such a manner. बहुत स्ट्रगल भी देखा, ऐसा नहीं था that it was very much easier for them. They struggled a lot to achieve their dreams and everybody have to struggle for it. किसी को भी easily अपने dreams, अपने desires achieve नहीं होती. All have to work hard for the same. सो आई होप कि आप दोनों से संतोष यादव एंड मारिया शरापोवा से इतना तो सीखे होंगे कि एक तो डिटरमाइंड बने रहना बहुत जरूरी है. डिटरमाइंड इन द सेंस कि भाई यू हैव डिसाइडेड व्हाट टू डू, देन मूव ऑन, फिर वो करके दिखाओ. That is called determined, right? Once you decide it means you have to do that or you want to do that anyhow. So this is what we can say determination, right? They were quite confident or hardworking. Must very much important thing is hardworking. You have to work hard if you want to achieve your dream, right? So yes, up till here only we have finished this chapter. Hope you understood it well, and I think